मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके चैप्टर को फिर से उसी को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था। क्या कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें मैं फोर ब्रेन के बारे में आपको बता रहा था। वहीं से फिर से उस टॉपिक को दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। The forebrain is the main thinking region of the brain. It consists region which receive sensory impulse from different receptors. ये क्या करता है? सेंसरी इम्पल्स को लेता है, रिसेप्टर्स जो उसको सेंड करते हैं। डिफरेंट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर साइट, देखने काम आती हैं, हियरिंग सुनने के, स्मेल सूंघने के, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत अलग अलग कार्य हैं। There are separate areas of association where all these sensory information is interpreted by keeping it long together with information from other receptors as well with information that is stored already in the brain. Depending upon all this, a decision is taken about how to respond and the information is transferred on the motor areas where control the movements of voluntary muscles like our leg muscles. वॉल्वेंट्री मसल्स का मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो जो भी मैसेज जाता है, अगर हाथ हिलाना है तो हाथ हिलेगा, अगर गर्दन हिलानी है तो गर्दन हिलेगी, पैर हिलाना है तो पैर हिलेगा। इस तरह का जो भी मैसेज होता है, जो मिलता है ब्रेन से, फिर वो ऐसा ही जो रिसेप्टर्स है वो काम करते हैं। आपके बुक के अंदर एक वेल लेवल डायग्राम बताया गया, ह्यूमन ब्रेन का दिखाया गया, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। Let us see the other use of word reflex that we have discussed about in introduction. Our mouth waters when we see food that we like without or our meaning to. Our hearts continuously beat without our thinking about it. In fact, we cannot control easily these actions by thinking about them even if we want to do. इसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉल्वेंट्री एक्शंस। Do you have to remember to or think about breathe or digest food? So in between the simple reflex action like change in size of pupil and the thought of action like moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control. इसके ऊपर हमारा कोई भी thinking control नहीं है। Some of these involuntary actions are controlled by hindbrain and midbrain. ये कौन कंट्रोल करता है इसको? hindbrain या फिर midbrain कंट्रोल करता है। All these involuntary actions including blood pressure, vomiting and salivation are controlled by the medulla in the hindbrain. hindbrain के अंदर जो medulla प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को या वोमिटिंग को या सेलिवेशन को कंट्रोल करता है। थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज लाइक पिकिंग अप अ पेंसिल, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, दीज बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ये इनको क्या हुआ, इस काम के लिए कौन जिम्मेदार है? हिंड ब्रेन। कॉल्ड द सेरिबेलम, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर precision of voluntary actions and in the maintenance of the posture and the balance of the body. बॉडी के पोस्चर या उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए किसका काम होता है? ये सेरिबेलम का काम होता है। कैसे टिश्यूज को प्रोटेक्ट रखा जाता है इसके बारे में आप समझेंगे। अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक अ ब्रेन विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज नीड टू बी प्रोटेक्टेड केयरफुली। फॉर दिस द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट द ब्रेन सिट्स inside a bony box. Inside a box, the brain is contained in fluid-filled balloon which gives further shock absorption. ये क्या होता है? एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर केमिकल फील्ड है जो ब्रेन का फॉर्म लेता है हमारी बॉडी का। When you run your hand down the middle of your back, you will feel a hard segment structure. This is backbone or vertebral column which protects the spinal cord. Spinal cord को कौन प्रोटेक्ट करता है? vertebral columns प्रोटेक्ट करते हैं। How does the nervous tissues cause action? So far we have been discussing about nervous tissues and how it receives information, transfers it about the body, processes information, makes decision depending upon information and conveys decisions to the muscles for the action. In other words, when
the movement or action is to be performed, muscles tissues will do the final job. How do animal muscles move? When a nerve impulse is received by the muscles fiber must move. Next question is, how do muscle cells change their shape? The answer must be in the chemistry of cellular components. Muscles cells have special kinds of proteins that changes both their shapes and their arrangement in the cell in the reproduction of nervous electrical impulse. When this occurs, new arrangements of these proteins give the muscles various shapes. मतलब जो भी मसल के अंदर शेप आता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन्स की वजह से होता है. Remember, when we discuss about the muscles tissues in class 9, there were various kinds of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles. Based on what we have talked for, what would the difference between these two? Involuntary muscles या voluntary muscles सेम वही जो जिसका हम जिस पे कंट्रोल कर पाएंगे वो तो क्या होंगे? वॉल्यूमेंट्री मसल्स होंगे. जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो इनवॉल्यूमेंट्री है. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जानेंगे. आज हमने क्या क्या बैक क्लास में पढ़ा और आज क्या जाना हमने. पहले तो हमने नर्वस सिस्टम से स्टार्ट किया था जिसके अंदर डेंड्राइट्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, फिर उसको डेंड्राइट्स कलेक्ट करता है, फिर एक्सोन को ट्रांसफर करते हुए एक्सोन एंड अपने एक्सोन के एंड्स पे ले जाता है. वहाँ फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल के अंदर चेंज कर दिया जाता है. फिर उसको क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट किया जाता है ब्रेन के द्वारा. फिर हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जाना, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है. फिर हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा, फोर ब्रेन का क्या काम है, हिंड ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन का क्या काम है, इसके बारे में हमने जाना. फिर हमने जाना क्या कि कैसे टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट रखते हैं. फिर हमने नर्वस टिश्यूज़ के एक्शंस के बारे में जाना. फिर हमने इस सेक्टर्स के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास दो बातें निकल के आई वो जानने के लिए क्या थी, वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होते हैं या वॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होते हैं. इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या होते हैं या इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जाना और समझा.